welcome to Astro Analysis. I'm your analyst Swayam Siddha. In this video, we are going to talk about the monthly horoscope for September for the sign of Aries. अगर आपकी लग्न राशि मेष है या फिर आपकी चंद्र राशि मेष है, then you can follow this video for general guidance. So if your ascendant is in Aries or your moon sign is in Aries, you can follow this video for general guidance. So in this video we're going to talk about your health, your education, your romance and your marriage, followed by your luck, career and business, and followed by some general pointers and special pointers and some remedies. To start with, let's see how the Navagrahas placed this month and what are the important transits that's going to happen in September. So to start with, you have Dev Guru Jupiter in your third house, and then Venus in your fourth house. In your fifth house of education, romance, you have Sun, Mercury, Ketu, and in your sixth house you have Mars. So the important transits are going to be I think during mid September, Venus is going to transit into Leo, and then Sun and Mercury are going to transit into Virgo. I think around I would say 14th September, and then during the same time, Mars is going to transit from Virgo into Libra. And all the major planets and shadow planets like Jupiter, Saturn, Rahu, Ketu are going to be in the same places for a long time. So let's start with your health. So your health, the lord of your lagna is Mars, so who was currently in the sixth house. So over the past month you may have experienced a little bit of illness. So हो सकता है आपका immunity थोड़ा down हो, आपको थोड़ा बहुत तबीयत खराब हो. So once Mars moves into Libra in mid September, उसके बाद आपका health धीरे धीरे recover करेगा. So अच्छा है, उसके बाद अच्छा रहेगा because once Mars is in Libra, वो अपने ही घर में एस्पेक्ट डालेंगे तो हेल्थ इम्प्रूव करेंगे. सो ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव. सो मूविंग ऑन टू द एजुकेशन. सो आपका एजुकेशन फिफ्थ हाउस से देखा जाता है, जिसमें करेंटली सन एंड मरकुरी हैं और केतु के साथ, और वो मिड सितंबर में दे आर गोइंग टू ट्रांजिट इनटू वर्गो एंड वीनस इज गोइंग टू कम इनटू योर फिफ्थ हाउस. सो सन एंड मरकुरी का फिफ्थ हाउस में होना इज अ गुड थिंग, क्योंकि वो बुधातिथ्य योग बनाते हैं वेर योर like the skills to understand and comprehend something, your intelligence is kind of like exalted. So that is a very good thing. That is up till like mid of September, which is like 15-16 September. So पढ़ाई करने के लिए आपको मतलब कुछ अगर एग्जाम इम्पोर्टेंट है and all, 15th तक is time is very good. And then Venus is going to come into the fifth house. So if your studies is related to something like creative, जैसे कि आप शायद कुछ फिल्म मेकिंग सीख रहे हैं या दो सॉर्ट ऑफ फील्ड्स, तो उसके बाद उनके लिए अच्छा है. सो आफ्टर 15 व्हेन वीनस मूव्स इन, दैट विल बी अ गुड टाइम. वैसे आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड इज सन. ओके, सन इज गोइंग टू बी इन सिक्स्थ हाउस. Okay, so once the sun's transit is there into the next house, that time may not be the perfect time for education, but उसके पहले अच्छा है. Speaking of romance भी हम लोग फिफ्थ हाउस से देखते हैं. तो केतु तो काफ़ी टाइम से यहाँ बैठे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत डिटैचमेंट पार्टनर की तरफ आपको, मैंने लास्ट मंथ भी कहा था, वैसे भी देखने को मिलेगा. ओके उसके बाद सन, यहाँ पे सन और मार्स का जो आपका रिलेशनशिप है, इट्स लाइक दे आर 12th फ्रॉम फर्स्ट. सो लग्न का लॉर्ड जो है सन इज 12th फ्रॉम. सो थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग एंड झगड़े ये सब होने के चांसेस है. लाइक देयर मे बी एंगर इश्यूज ऑन योर लाइक विथ यू और योर पार्टनर. सो just be mindful of that.
और थोड़ा बहुत 15 सितंबर तक थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन होने का चांस है. 15 सितंबर के बाद भी दे विल हैव द सेम रिलेशनशिप. सो ये होगा ही, तो बी माइंडफुल ऑफ दैट. So, moving on to the seventh house. So, seventh house is ruled by Venus, जो who is moving into fourth house. So, yeah, Venus moving into a Kendra house is good, and वहाँ से शायद वो 11th house को भी aspect करेंगे, which is good. So, like आपको मैरिज से कुछ गेन्स होंगे, कुछ लाभ हो सकता है, आपके पार्टनर को कुछ फाइनेंशियल गेन्स हो. But the problem is Mars is also going to move here after like 14th. So Mars जब 7th हाउस में मूव करेंगे, आपके लग्न को भी देखेंगे, तो देर आर गोइंग टू बी सम एंगर इश्यूज. छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, इरिटेट हो जाना, ये सब होगा. सो उससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं मैरिज में. सो बी माइंडफुल ऑफ दैट. कोशिश करिए कि आप अपने गुस्से को कैसे अच्छी तरह से मैनेज करेंगे, सो दैट इट डजंट स्नोबॉल इनटू समथिंग बिग. सो यही देख सकती हूँ. I think other than that it's good for marriage, or the things will improve in terms of marriage. Then comes like bhagya. So okay, आपका भाग्य is seen from the 9th house, which is ruled by Jupiter, जो Jupiter ही खुद एस्पेक्ट कर रहे हैं, और दूसरे सारे सैटर्न के भी, मार्स के भी एस्पेक्ट है. सो भाग्य में बोलूँगी इज गुड, नॉट बैड. इफ़ यू वांट टू स्पेकुलेट इन द स्टॉक मार्केट, गो हेड विद इट. कुछ बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, गो हेड विद दैट. स्टॉक मार्केट रादर मैं बोलूँगी जब तक सूर्य अपने घर में तब ज़्यादा बेटर रहेगा. उसके बाद भी इट्स काइंड ऑफ ओके. देन मूविंग ऑन टू 10th house of career, which is ruled by Saturn, जो कि अभी 12th हाउस में है. ओके, सो देखिए 12th हाउस में जब वीनस यहाँ मूव करेंगे, नहीं वीनस ऑलरेडी यहाँ है, सो 10th हाउस पे वीनस का भी एस्पेक्ट है. सो इट्स गुड फॉर टू गेट बिट ऑफ क्रिएटिविटी इन योर वर्क प्लेस. और बट जैसे कि शनि 12वें घर में, तो लाइक थोड़ा बहुत डिप्रेशन और प्रोक्रेस्टिनेशन आपका रहेगा कि वो आज नहीं कल करते हैं, कल नहीं कभी और करते हैं. सो वो चीज़ से आपको थोड़ा बचना है. सो दैट इज समथिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ. और 10th लॉर्ड 12th हाउस में एक और चीज़ भी है. इफ़ इन योर नेटल चार्ट आपका सैटर्न का प्लेसमेंट अच्छा है, then it can actually bring you travel to foreign lands from like for work related things. So अगर आप प्लान कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका कंपनी आपको काइंड ऑफ रिलोकेट कर दे ओवरसीज, so this is a good time to start working towards it. So आप उसमें आप हार्ड वर्क कीजिए, तो शनि आपको ज़रूर उसका अच्छा रिजल्ट देंगे. और हो सकता है ये शनि तो यहाँ काफ़ी टाइम तक है, आई थिंक जून 2026 तक है. सो मे बी लाइक बाय द टाइम, सॉरी जून नहीं, उससे भी ज़्यादा है. तो हो सकता है उनका ये ट्रांजिट ख़त्म होने तक आपका कुछ लाइक वो फुलफिल हो जाए. सो दैट्स अबाउट वर्क. नाउ मूविंग ऑन टू बिजनेस. सो बिजनेस एक्चुअली, हाँ बिजनेस बुध एक्चुअली मिड में वर्गो में चले आएंगे. वर्गो उनकी अपनी राशि है, एंड ऑल्सो द एक्सॉल्टेशन ऑफ मर्क्यूरी इज इन वर्गो. सो बिजनेस वाइज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ग्रोथ रहेगा. वीनस भी केंद्र हाउस में आएंगे 4th में, तो दैट इज ऑल्सो गुड. सो बोथ फॉर फाइनेंस एंड ग्रोथ बिजनेस वाइज अच्छा रहेगा. सो और एक स्पेशल पॉइंटर जो दे रही हूँ मैं, विच इज़ फॉर जुपिटर ट्रांजिट. अगर आपका एसेंडेंट एरीज में है, Jupiter is actually your 9th lord, and it's currently transiting your 3rd house. So 3rd house हम लोग इसका भी करते हैं कि it is also like this is also the house of legal contracts for you, and also the house of like big religious ceremonies for your spouse.
सो अगर योर एज इज़ अप्रोप्रिएट, इफ़ आप ये लाइक आप किसी से शादी करना चाहते थे, शादी के लिए ढूंढ रहे थे, सो दिस पीरियड अंटिल द जून ऑफ 2026 आई थिंक इज़ अ गुड पीरियड, जिसमें कि ऐसा कुछ हो सकता है जैसे कि आपको कोई बड़ा रिलीजियस, सो शादी क्या होता है, बड़ा रिलीजियस सेरेमनी विथ लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल दैट. So maybe that will kind of that is what you will have, but like the condition is within your birth chart आपका 7th house active रहना चाहिए, और बर्थ हाउस में भी आपका 9th लॉर्ड और जुपिटर का लाइक कंडीशन अच्छा होना चाहिए. कोई अच्छा दशा महादशा जो 3rd लॉर्ड का है या 9th लॉर्ड का या 7th लॉर्ड का है, कुछ अच्छा दशा अंतरदशा चल रहा हो. So this can totally happen. Yeah, but your age should be appropriate also. If you're like 20-year-old and you're watching this and you think, oh, I'm gonna get married, नहीं, ऐसा नहीं होगा. अगर आप सच में सीरियस है, ढूंढ रहे हैं एंड ऑल दैट, देन इट मे हैपन फॉर यू. That's all the predictions for this month for Aries. Followed by रेमेडीज के हिसाब से आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं. हनुमान चालीसा हर चीज़ में हेल्प करते हैं. इवन शनि की आपकी जो 7.5 चल रही है उसमें भी हेल्प कर सकते हैं. और स्पेशली आई वुड से मार्स का थोड़ा मैरिज हाउस में आना थोड़ा ट्रिकी है, तो पर मार्स आपके लग्न लॉर्ड भी हैं. सो जस्ट डू अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज टू कीप द थिंग्स काम डाउन. वैसे एक्सरसाइज करने से लाइक साइंटिफिकली वैसे भी आपका मूड अच्छा रहेगा, तो शायद उतना एंगर इश्यूज ना हो. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं एक और वीडियो के साथ. Thank you. Take care. Stay well. Bye.